औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning all of you. This is your English class and myself Kehkashan Sheikh, your English teacher, welcomes you in today's session of MCGM online class. A kind suggestion for new students that for better viewing experience, kindly rotate your mobile throughout. So, let's start with today's lesson of my English book, Standard 8, Unit 2.2, The House Builder. आवाज आ रही है मेरी? Yes, teacher. Okay, okay. So students, this is a very interesting story of a house builder and one of his worker. Before we begin the story, can you tell me some different professionals or workers' name who put their service in building any house or Yes, project? Yes, हाँ teacher. हाँ say me. Engineer. Engineers, very good. और कौन लोग काम Carpenter. करते हैं? कारपेंटर, वेरी गुड वेरी गुड. जब किसी बिल्डिंग की तामीर की जाती है तो कुछ लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बहुत सारे लोग. तो बताइए उनके नाम. जैसे आपने कहा इंजीनियर्स, कारपेंटर्स एंड Builders. बिल्डर्स, वेरी गुड. Mason. Contractor. ओके ओके. तो इन चंद लोगों की मिली जुली खिदमात की बदौलत ही किसी अच्छे या खूबसूरत घर की तामीर मुमकिन होती है. आइए देखते हैं, है ना. हु आर दे? फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर. क्या करता है ये? He undertakes a contract to provide materials or labors, है ना. ये materials और labors provide करता है and employs them, और उनको employ करता है, उनको pay करता है, right? The next one is an architect. Architect क्या करता है? Plans and design structure. वेरी गुड. प्लान्स और डिजाइन करता है. ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी बिल्डिंग होने वाली है, तामीर होने वाली है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन करता है. तो थर्ड वन इज इंजीनियर. अब इंजीनियर जो है वो क्या करता है? फाइनलाइज द स्ट्रक्चर मेड बाय द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसे फाइनलाइज करता है, राइट? देन द फोर्थ वन इज मैसन. अब यहाँ मैसन आ जाता है. इसके बाद से मैसन का काम शुरू होता है. मैसन क्या करता है? Build Build walls. walls, roof, etc. राइट राइट. मैसन्स आर पीपल हु वर्क विथ स्टोन्स, ब्रिक्स, है ना, सीमेंट्स. सो दीज आर मैसन्स. द नेक्स्ट वन इज टाइलर. अब टाइलर जो है, टाइलर डिजाइन्स और हु डील्स विथ टाइल्स. ही डज all the floor works, है ना, etc. Then the next one is interior decorator. When anyone want to decorate his house or give a new beautiful look to his home, then he'll go for interior decorator. Then after interior decorator, one more carpenter, as you said, है ना, earlier. Carpenter does all types of wooden work, है ना. वुडन वर्क करने के लिए किसे बुलाया जाता है? Carpenter. कारपेंटर को. तो इस तरह ऑल दीज पीपल वर्क टुगेदर. सम मोर पीपल, पेंटर, है ना, प्लम्बर, इन सब की भी जरूरत पड़ती है. तो ये सब मिलजुल कर जो है वो किसी घर की, किसी बिल्डिंग की तामीर में हिस्सा लेते हैं. सो इट इज अ टीम वर्क.
of some of these people to build a house. A beautiful house is made with collaboration of such these people. इन सबके मिलने जुलने से ही तैयार होता है. तो अभी हम जो है इन्हीं पर बेसिस एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं on page number 30. हाँ, before starting the story, we'll go for warming up. है ना, on page number 30, there is a warming up exercise in your textbook. Some professions are given here in one column, and with the match for them work they do the next column. So let's see. Here are the professions which we have seen just now, है ना, architect, engineer, building contractor, carpenter, mason, tiler and interior decorator. अब हम देखते हैं इसका मैच क्या बनता है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेंसिल है, तो यू कैन मैच इट विथ पेंसिल. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, आर्किटेक्ट. Read for me. Any one of you, please read for me. And design structure. Very good. Plans, not planes बेटा, plans. Plan करता है वो and design बनाता है ना, structure की design बनाता है on paperwork. He does all the paperwork. Architect. फिर then next, engineer. He ensures the structure will be strong and stable. जो भी स्ट्रक्चर बनाया है आर्किटेक्ट ने वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है या नहीं, उसके बारे में इंश्योर करता है, सब कुछ समझता बूझता है वो. नेक्स्ट, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सुपरवाइजर्स कंस्ट्रक्शन. जो भी काम हो रहा है उसको सुपरवाइज करता है वो. एम्प्लॉयज, वर्कर्स, प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा, है ना. देन द नेक्स्ट वन इज कारपेंटर. अब कारपेंटर क्या करता है, Make wooden framework of doors, windows, etc. वेरी गुड. तो सारे वुडन काम है ना, जितने भी लकड़ी के काम होते हैं वो सारे काम जो है वो कारपेंटर करता है. देन नेक्स्ट वन इज मैसन. मैसन क्या करता है, build Walls, roof, plasters. etc. and plasters. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना. देन नेक्स्ट वन इज टाइलर. टाइलर वर्क ऑफ does who's The name? flooring. Does the flooring. Yes, does the flooring. And the last one is interior decorator. Beautiful. Beautifies the Beautify the of a home. inside of home. very good, very good. Beautifies करता है वो, है ना, खूबसूरत बनाता है, इंटीरियर डिजाइन करता है वो, राइट. तो इस तरह जो है ये हमारा वार्मिंग अप की एक्सरसाइज हो गई. नाउ विल गो टू द स्टोरी. Okay, are you ready? Yes, teacher. To listening the story. Okay, come on, let's start. The house. So, अभी हमने जितने भी प्रोफेशनल्स देखे ना, उन्हीं में से एक की ये स्टोरी है. This is a story of a mason. अब इतने सारों में से आपने मैसन को भी देखा कि उसके काम थे. अब ये स्टोरी एक मैसन की ही है. This is the story of a mason who worked for a building contractor. The mason always strove to do his work to perfection. अब मैसन कौन होता है, क्या कहते हैं तुम्हें, क्या कहते हैं मैसन को? मिस्त्री. मिस्त्री, है ना, मिस्त्री कहते हैं, राइट. तो मैसन की स्टोरी है जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए, एक ठेकेदार के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था. The mason always strove to do his work to perfection. मैसन क्या करता था, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था और उसकी हमेशा कोशिश होती थी कि वो अपना वर्क जो है, मैसन ऑलवेज स्ट्रोव मीन्स कोशिश, है ना, कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, जिद्दोजहद करना. तो वर्क टू परफेक्शन, अपना काम बहुत ही अच्छी तरह परफेक्शन से करे, बहुत ही अच्छा करे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. As soon as a house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. अब as soon as, जैसे ही, a house had been designed,
हाउस की डिजाइन बना दी गई, पहले डिजाइन बन गई बाय द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाई और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो फाइनलाइज किसने किया? इंजीनियर इंजीनियर ने। तो Engineer. आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम हो गया, तो फिर किसका काम स्टार्ट हुआ? मैसन का, है ना। तो जो है वो house की design by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason. तो contractor जो है वो अब mason को सौंप देता था काम and leave the responsibility of building the house, है ना, to him. तो वो उसे बुलाकर सारे काम करने की, घर बनाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया करता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे स्टोरी। द मैसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और अब यहाँ से मैसन का काम स्टार्ट होता था। मैसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। मैसन क्या करता था? बगैर किसी जो है वक्त को गंवाए हुए, वक्त बर्बाद ना करते हुए फौरन क्या करता था? He would take great interest in his work of building and do it with full dedication. और फिर मैसन जो है वो क्या करता था? उस अपने काम में दिलचस्पी लेता था, इंटरेस्ट लेता था। He would take great interest, बहुत दिलचस्पी लेता था, है ना, of building and do it with full dedication, और बड़ी डेडिकेशन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, शौक से अपने काम को अंजाम देने में जुट जाता था। He made sure that he used the best construction material of high quality. और फिर वो सारी चीजें चेक करता था। He made sure, वो यकीन करता था कि सब चीज सही है या नहीं। He used the best construction material. अब कंस्ट्रक्शन होगा तो मटेरियल्स आएंगे, है ना, पिलर्स आएंगे, सीमेंट्स आएगी, ब्रिक्स आएंगे, तो वो सारे मटेरियल्स जो हैं वो हाई क्वालिटी के आ रहे हैं या नहीं, इस बात की यकीन दहानी करता था वो। फिर द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्स, और फिर और क्या क्या काम करता था? मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्स, सारी दीवारों वगैरह के मेजरमेंट्स लेता था। डोरवेज यानी दरवाजों के, है ना, आर्चेस, और जो भी जो है वो मेहराबें होती हैं, यानी दरवाजे और खिड़कियों के जो कटआउट्स होते हैं उसे आर्चेस कहते हैं। तो इन सब की जो है पैमाइश ली जाती है। तब जो है पत्थर वगैरह मंगाए जाते हैं, मार्बल्स मंगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना। कभी घर बनता है तो कैसे जो है वो मिस्त्री जो है, मैसन जो है वो नाप लेते हैं हर चीज का, तो मेजरमेंट्स करते हैं वो, एंड गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू व्हाटएवर ही बिल्ट। और फिर वो क्या करता था? अपने काम को, जो कुछ भी वो बनाता था, उसको एक्सीलेंट, बेहतरीन, एंड अपीलिंग फिनिश, और दिल मोहने वाली, दिल लुभाने वाली फिनिश देने की कोशिश करता था। हम भी बोलते हैं ना, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया, लास्ट टच बाकी है, फिनिश बस बाकी है ना। तो यानी हम लास्ट में उसको जो कुछ करते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ फिनिश। तो अपीलिंग फिनिश देने की कोशिश करता था वो, बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करता था। लेट्स सी अहेड। The owner of the new houses built would be more than satisfied with the construction. अब जो ओनर्स होते थे न्यू हाउसेस के, है ना, जो मालकिन होते थे, मालिक होते थे न्यू हाउसेस के, वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड, वो बहुत मुतमईन होते थे विद द कंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी वो घर बनाता था, खूबसूरत 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 तरीन घर बनाता था मैसन, उसके कामों को देखकर जो ओनर्स होते थे वो बहुत हैप्पी हो जाया करते थे, सेटिस्फाई हो जाया करते थे, है ना। So, because of the zeal, diligence, loyalty, and persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand and fetched good business to his contractor. Because of the zeal, diligence, उसके zeal से,
but the mason was very loyal to his contractor, to the owners of the new houses. So he deals with zeals, diligence, loyalty, यानी वो जोश से, diligence से, मेहनत होकर और loyalty से, अपनी वफादारी से, persistence that he displayed in his work, और अपनी इस्तेकामत से, persistence मतलब किसी काम को करने के लिए जुट गए, इस्तेकामत यानी कायम हो गए एकदम, है ना, पूरी मेहनत के साथ उस पर डट गए, उसे कहते हैं इस्तेकामत। किसी काम को करने के लिए एकदम डट जाना, पीछे ना हटना, इस्तेकामत। तो persistence that he displayed in his work, the mason was in great demand। अब वो इतने अच्छे से काम कर रहा है, ये तमाम खूबियां उसकी दिखाई दे रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता था, the mason was in great demand। मैसन की मांग, डिमांड बहुत बढ़ गई ओनर्स लोगों में, वो मकबूल हो गया, है ना, कि ये मैसन, ये मिस्त्री बहुत अच्छा काम करता है। एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और इस वजह से उसके कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छा बिजनेस मिलने लगा, उसके कॉन्ट्रैक्टर को अच्छा गुड बिजनेस फेच होने लगा। फेच होना मतलब हासिल होना, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, राइट। Yes. लेट्स सी। Subsequently, the contractor recompensed the mason handsomely। अब subsequently आगे चलकर क्या हुआ, the contractor recompensed, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी खुश हो गया उसके कामों से, मैं अपने मैसन के कामों से, तो वो रिकम्पेंस्ड करने लगा मैसन को, यानी अदा करने लगा, देने लगा, कंपनसेशन देगा ना वो उसे पे करेगा। कैसे पे करता था मैसन, हैंडसमली, बहुत ही अच्छी तरह, दिल खोलकर, हैंडसमली यानी कुशादा दिली से, फराख दिली से, विद अ वेरी गुड सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी वो उसे पे करने लगा। He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity। और उसकी वजह से जब उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी, तो मैसन जो था, ही जो था, could meet the needs of his family sufficiently, तो फिर वो अपने फैमिली की, अपने ख़ानदान की तमाम ज़रूरियात जो है वो बड़े अच्छी तरह सफिशेंटली पूरी करने लगा, तमाम ज़रूरियात उसकी पूरी होने लगी, विदाउट एनी स्कार्सिटी, किसी भी कमी के बिना, किसी भी किल्लत के बिना, किसी भी कमी के बिना, है ना, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी, इतना अच्छा जो है उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसे पे करता था। तो दोनों ही खुश थे, एक दूसरे से हैप्पी थे, मैसन कॉन्ट्रैक्टर से, एंड द कॉन्ट्रैक्टर हैप्पी विद द मैसन। लेट्स सी अहेड। The mason thus continued working with great devotion for many years। अब मैसन जो है उसने कंटिन्यू रखा, है ना, करता रहा, काम जारी रखा, वर्किंग काम करना, विथ ग्रेट डिवोशन, बड़ी मेहनत, बड़े शौक से, फॉर मैनी ईयर्स, कब तक, बहुत सालों तक वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि उसने चेंज कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्टर से उसकी नहीं बन रही, दूसरी जगह काम पे चला गया, नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसे बहुत खुश रखा, और उसका काम इतना अच्छा था कि कॉन्ट्रैक्टर भी उससे बहुत खुश था। तो इन दोनों की जोड़ी जो है वो चलती रही फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, जब कि वो क्या बन गया, ग्रैंडफादर बन गया, यानी वो जो है उस दादा बन गया, है ना, दादा और नाना को कहते हैं ना ग्रैंडफादर, तो वो ग्रैंडफादर बन गया। देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू रिटायर, और फिर जब वो दादा बन गया, बूढ़ा हो गया, है ना, ओल्ड एज हो गई उसकी, देन ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, दैट इट वाज टाइम टू रिटायर, कि वो क्या करे, अब रिटायरमेंट ले। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायर, यू नो, रिटायर हो जाना यानी क्या हो जाना, नहीं तो 60 साल के बाद जो ईयर्स के हो जाते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हाँ, गुड गुड। देखिए, रिटायरमेंट यानी कि काम से सुबकदोश हो जाना, छुट्टी ले लेना, काम से फुर्सत ले लेना। अब कुछ कुछ जो है ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें पर्सन खुद रिटायर ले लेता है, उसे ऐसा लगता है अब बस, अब मैं और नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, सो आई रिटायर, है ना, आई टेक रिटायरमेंट।
बट सम जो है वो ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको कंपनी या आप गवर्नमेंट सर्विस हैं तो गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है एट रिटायर अ करते सर्टन पीरियड ऑफ एज, है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये मैसन ने खुद रिटायरमेंट की सोची, क्योंकि उसका अपना ओन पर्सनल काम था, है ना, ओन बिजनेस था। सो ही हाँ decided to take retire and spend time playing with his grandchildren। और फिर उसने क्या सोचा बच्चे कि वो के रिटायरमेंट लेकर अब क्या करे, बस स्पेंड करे, गुजारे, है ना, गुजारे, क्या करे, किस कहाँ गुजारे अपना टाइम, अपने प्लेइंग विथ हिज ग्रैंडचिल्ड्रन, अपने पोते पोतियों नवासी नवासियों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपना वक्त गुजारे और आराम करे, है ना। उसने बहुत साल तक कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस कर ली थी, है ना, कॉन्ट्रैक्टर की खिदमत कर ली थी, इसलिए अब वो रिटायरमेंट लेना चाहता था। सो व्हाट हैपेंड, बीइंग अ फर्म माइंडेड person, he informed his contractor of his decision to retire from house building। अब वो एक फर्म माइंडेड पर्सन था, है ना, फर्म माइंडेड पर्सन मतलब मजबूत इरादे वाला, है ना, जो इरादा कर ले उस पर कायम रहने वाला फर्म माइंडेड पर्सन। उसने पूरा इरादा करते कर लिया था कि वो रिटायरमेंट लेगा और अपने इरादे का पुख्ता था, तो उसने जो है क्या किया, इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर, ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर, अपने इरादे से, अपने जो भी उसने जो है वो डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था, उससे उसने इन्फॉर्म किया अपने कॉन्ट्रैक्टर को टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग, कि अब वो हाउस बिल्डिंग के काम से रिटायरमेंट लेना चाहता है। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेंड, तो कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने जब ये सुना तो वो बहुत ही डिसहार्टेंड हो गया, मतलब उदास हो गया, उदास हो गया, वेरी गुड, उदास हो गया। टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन, क्यों उदास हुआ था उसके फैसले से? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। वेरी गुड, वो बहुत अच्छा काम करता था, इतना अच्छा मैसन उसे शायद फिर ना मिले, है ना। तो इतने अच्छे मैसन को, इतने अच्छे वर्कर को छोड़ने के लिए वो राजी नहीं था और ये जाना चाहता है, तो ये सुनकर वो बड़ा ही उदास हो गया, डिसहार्टेंड हो गया, है ना, डिसहार्टेंड टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन, इतना अच्छा बेहतरीन वर्कमैन छोड़ने के लिए। एंड अर्ज द मैसन, और फिर उसने अर्ज किया मैसन को पर जोर दिया, उसे रिक्वेस्ट की, हाँ उससे बोला, बार बार कहा, अर्ज करना यानी रिक्वेस्ट कर जोर देना, बार बार कहना, है ना, टू कंटिन्यू हिज जॉब, कि वो क्या करे, अपनी जॉब कंटिन्यू करे, अपना काम जारी रखे, हाँ, बट टू नो अवेल, लेकिन भाई मैसन तो फॉर्म माइंडेड पर्सन था, वो बहुत ही पुख्ता इरादे वाला था, सो उसने जो है नहीं मानी बात, और क्या हो गया, नो अवेल मतलब फायदा नहीं हुआ, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के बार बार मनाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। द मैसन हैड मेड अप हिज माइंड, मैसन ने अपना इरादा बना लिया था टू कैरी ऑन, और फिर उसने इनकार कर दिया टू कैरी ऑन, काम जारी रखने के लिए उसने अपना जहन बना लिया था, इरादा कर लिया था, मेड अप हिज माइंड, है ना, कि अब वो काम जारी नहीं रखेगा, अब now he want to spend his time with his grandchildren। Okay, let's see ahead। Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site। और फाइनली आखिरकार लास्ट में क्या हुआ, बहुत मनाने के बाद, द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मैसन, कॉन्ट्रैक्टर ने कन्विंस कर लिया, कायल कर लिया, राजी कर लिया मैसन को, टू बिल्ड वन लास्ट हाउस, कि अच्छा ठीक है तुम रिटायरमेंट लेना चाहते हो ले लो, बट बिल्ड वन लास्ट हाउस, एक लास्ट हाउस बना दो, ऑन अ ब्यूटिफुल एंड कन्वीनियंट साइट, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट पर, मुनासिब जगह पर जो है वो मेरे लिए एज अ स्पेशल फेवर, यानी मेरा एक स्पेशल फेवर कर दो, एक खास काम कर दो, मेरे लिए एक घर बना दो। द मैसन एग्रीड टू डू सो विथ ग्रेट रिलक्टेंस, और मैसन जो है वो राजी हो गया, ग्रेट रिलक्टेंस, हिचकिचाहट के बाद आखिरकार वो तैयार हो गया, नॉट टू हैप्पीली इधर, यानी राजी तो नहीं था दिल से, बट फिर भी तैयार हो गया। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड नाउ,
अब ये नया वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड. It was a most beautifully designed house to be built at a sought after location. अब जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो मोस्ट ब्यूटीफुली डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई उसकी, टू बी बिल्ट एट अ सॉट आफ्टर लोकेशन. एक मुंतखब की हुई जो भी जगह मुंतखब की गई थी, सॉट आफ्टर की गई थी, उस जगह पर जो है वो काम स्टार्ट हुआ. However, the mason could not put his mind and heart in his work. हालांकि द मैसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट. हालांकि मैसन जो है वो अपने दिल से, अपने दिमाग से अच्छे से तरह मन लगाकर काम नहीं कर रहा था, है ना. पुट हिज माइंड एंड हार्ट, इट इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है ये, पुट माइंड एंड हार्ट, दिल दिमाग लगाकर काम करना, मन लगाकर काम करना हम जिसको कहते हैं. ही डिड हिज वर्क एवरी रफली वेरी रफली एंड केयरलेसली. तो उसने अपना काम बहुत ही रफली और केयरलेसली किया, बिल्कुल ध्यान से ना करते हुए, है ना, लापरवाही से वो काम करता रहा. विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना किसी इंटरेस्ट के और डेडिकेशन के, लगन के. इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड was of low quality. और जो भी बिल्डिंग मटेरियल आ रहा था वो उसने वो चेक करना भी गवारा नहीं किया. लो क्वालिटी के मटेरियल्स आए तो ही डिड नॉट बॉदर, है ना, उसने जरा भी परवाह नहीं की. बट ही डिड नॉट केयर, उसने केयर ही नहीं किया. ही सिंपली वांटेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट. वो बस क्या चाहता था कि अपना काम कंप्लीट करे इन हेस्ट, जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करे, एंड फाइनली रिटायर, और फिर रिटायर हो जाए. बस उसके एक ही उस पर धुन सवार थी कि रिटायरमेंट लेना है. नेक्स्ट, द हाउस वाज रेडी अर्लियर देन एक्सपेक्टेड. अब जब जल्दी जल्दी काम किया गया तो हाउस जो है वो रेडी हो गया, अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, सोचिए गए वक्त से पहले. वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर्स, वीक वॉल्स, पुअर फिनिश, एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, है ना. वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, बहुत ही रफली स्ट्रक्चर तैयार हुआ, बहुत ही एकदम रफ तौर पर, बहुत अच्छा नहीं, है ना, कैसा भी. तो वीक वॉल्स थी उसकी, वॉल्स भी बहुत कोई खूबसूरत नहीं बनाई गई. पुअर फिनिश, उसने फिनिश पर भी कोई ध्यान नहीं दिया. एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल, और ज़रा भी खूबसूरत बनकर तैयार नहीं हुआ एज डिज़ाइन, जैसा कि डिज़ाइन किया गया था. डिज़ाइन तो बहुत खूबसूरत थी मगर घर इतना अच्छा तैयार नहीं हुआ. Yet the mason did not care. फिर भी मैसन को कोई परवाह ही नहीं थी. He informed the contractor. उसने कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म कर दिया that the house was ready and he was waiting to hand over its keys to him. कि कौन, आपका घर तैयार हो चुका है, लास्ट हाउस, और आप आ जाइए, है ना. ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर, और बस हैंड ओवर कर देना चाहता था वो, जल्द से जल्द उसके हवाले कर देने, सौंप देना चाहता था कीज, चाबियां, टू हिम, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को. देन द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट. अब दिस इज द लास्ट पैरा. हाँ, द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड, अब कॉन्ट्रैक्टर आ पहुंचा, है ना, उस साइट पर, उस मकाम पर. ही हैड अ फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड. अब उसके हाथों में जो है, उसके पास जो था वो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, कानूनी दस्तावेजात थे. आपने भी देखे होंगे जब कोई जो है वो डील की जाती है ना, तो लीगल पेपर्स बनाए जाते हैं. जैसे आपने शायद जो है वो कभी एफिडेविट वगैरह देखा हो. तो इसी तरह जब कोई घर परचेस किया जाता है या बनाया जाता है तो भी जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं. तो कॉन्ट्रैक्टर के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट था, पेपर्स था. द मैसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम. द मैसन ने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया, दे दिया, सौंप दिया न्यू हाउस कीज टू हिम, कॉन्ट्रैक्टर को नए घर की चाबियां. बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो था वो आगे नहीं बढ़ा. स्टेप फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ना, तो वो आगे नहीं बढ़ा. टू एंटर द हाउस, घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ. टू सी इट, उसे देखने के लिए कि घर कैसा बनाए तुमने, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, कुछ भी उसने नहीं देखा. इंस्टेड, बल्कि विद अ ब्रॉड स्माइल, बड़ी ही सी मुस्कुराहट के साथ, ही हैंडेड ओवर द फाइल अलोंग विद द हाउस कीज. उसने उस घर की चाबियां
और फाइल सब कुछ जो है वो हैंडेड ओवर कर दी टू द मैसन, मैसन को हैंड ओवर कर दी, मैसन को सौंप दी। और क्या कहा? एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन, और बड़े ही मुस्कुराते हुए उसने क्या कहा? दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस। ये जो है वो ओनरशिप के कागजात हैं, मिल्कियत के कागजात हैं, इन योर नेम, तुम्हारे नाम पर। द हाउस इज योर्स, ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान्ड इट एज अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए प्लान किया था, तुम्हारे लिए बनवाया था। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो देखो, जो लास्ट घर उसने बनाया वो किसके लिए था? मैसन के लिए है ना, मैसन के लिए ही था। मैसन ये बात नहीं जानता था, तो मैसन ने केयर ही नहीं किया। ही डिड नॉट केयर, है ना, ऑफ हिज लास्ट वर्क, कि कैसा काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस स्टोरी से हमें कुछ लेसन भी मिल रहा है, कुछ मोरल भी मिल रहा है। क्या मोरल मिल रहा है? कि अगर लास्ट काम है तो कैसे कर लेना है, दिल लगा जल्दी जल्दी करके हट जाना है क्या? नहीं, हमें जो है वो अपना लास्ट काम भी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह करना है। हर काम जो है ऑलवेज डू योर बेस्ट, है ना, ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी अपना काम जो है वो बड़ी ही अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए। आपने पोयम भी पढ़ी है, आपकी फर्स्ट पोयम भी है बी द बेस्ट, है ना। एंड द सेकंड आल्सो मिल सकता है हमें यहाँ लेसन इस स्टोरी से, है ना। मोरल्स कहते हैं लेसन को, सबक मिलता है जो हमें किसी भी स्टोरी से। तो सेकंड हमें मिल रहा है एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा सो करोगे वैसा ही रीप करोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, है ना। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कि उसने लास्ट वाले में वो थोड़ा सा चूक गया, वो उसने आखिरी काम अच्छा नहीं किया, और जब अच्छा नहीं किया तो देखो क्या नतीजा मिला कि उसको वो घर उसी के लिए था, राइट। तो आपको स्टोरी समझ में आई? हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी टीचर। लेट्स चेक। हाँ, चेक करती हूँ आपको, जरा देखते हैं आपने समझा या नहीं समझा। ओके, तो यहाँ मैं जो है ट्रू और फॉल्स की एक एक्सरसाइज ले रही हूँ। यू हैव टू टेल whether this sentence is true or false. Okay, the first one is the mason always strove to do his work to perfection. अब बताइए मुझे, mason always strove to do his work, अपना वर्क करता था to perfection. True or false? True. True? Yes, teacher, true. All of you said true. Let's see. Okay, right, you are right. Very good, very good. The next one. He wouldn't take any interest in his work, है ना, of building. He wouldn't take any interest in his work of building. अब वो अपने काम में interest, he wouldn't take interest. अपने work of building में he wouldn't take interest. बताइए. False. False. Would take interest नहीं है, he wouldn't take interest. तो आपको समझना है, हाँ, इंटरेस्ट नहीं लेता था। फॉल्स? Okay, let's see. Yes, you are right. Very good. False. Let's see the next one. The mason had no demand and fetched very bad business to his contractor. False. Mason had no demand, कोई demand, False. and fetched very bad business to his contractor. Contractor के लिए very bad business करता था. False? All of you said false? Yes. Yeah. Let's see. False. Yes, you are right. The next one. The contractor recompensed the mason with a very less salary. False. अब contractor जो है वो recompense mason को recompense करता था less salary. False? False. Okay. False. Very good. Smart students. Very good. Now, the mason wanted to retire and spend time playing with his grandchildren. True. Okay, true, very good, right. The last house made by mason was very strong in structure and beautiful. False. False, right. You are right. And last one, the contractor handed over the keys to the mason and said, the house is yours. I had planned it as a gift for you. True. हाँ, उसने जो है वो दे दी
और कहा के हाउस इज योर्स, राइट? ट्रू. So this is the end of the story. Very good, very good. Huh? Now it's homework time. Write at least 3 phrases and their meanings. आपको इस तरह जैसे अभी morals और lessons आपने देखे वैसे 3 phrases, at least 3 phrases you have to write and send to your teacher on WhatsApp. है ना? This is your homework, right? Thank you. And thank you to you also. And I want to thank some other people also, our officers, है ना? Special thanks to our education officer, Mr. Mahesh Palkar, and आप सब इन्हें अच्छी तरह जानते पहचानते हैं. हमारी बीओ प्यारी बीओ है ना, आरिफा शेख मैडम, एम वार्ड है ना, और इस ऑनलाइन सेशन की इंचार्ज, और एल वार्ड की बीओ अलमास मैडम, और हमारे बहुत ही प्यारे आदिल सर जो रोज़ आना आपको जो है वो हमको आप तक पहुंचाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह डील करते हैं, राइट? बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं. सो अब जो है यहाँ पर हमारा सेशन फिनिश होता है और मैं समझती हूँ कि हमारा टाइम भी फिनिश हो रहा है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.